فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہر منزل پر رسول اللہ اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں، ہر منزل پر رسول اللہ علی ابن ابی طالب کا تعارف کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ میں مسلسل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کا تعارف کرایا۔ کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، اور علی ابن ابی طالب نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو، توریت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انجیل کے بارے میں مجھ سے پوچھو، زبور کے بارے میں مجھ سے پوچھو، قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو، کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ علی ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ زمانہ 1400 برس ہو گئے ہیں علی ابن ابی طالب کو اس دنیا سے گئے ہوئے، زمانہ آج تک دروازے کو نہ سمجھ سکا تو زمانہ شہر علم کو کیا سمجھے گا؟ جب دنیا باب مدینۃ العلم کو نہ سمجھ سکی تو دنیا شہر علم کو کیا سمجھے گی؟ یہ باب مدینۃ العلم ہے علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب ایک علمی دنیا گھر کے اندر بیٹھ کے علی آباد کر رہے ہیں، اور جب رسول اس دنیا سے جاتے ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، اور گھر کے دروازوں کو بند کر کے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ دوش پر ادا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو مطابق تنزیل جمع نہ کر لوں۔ علی ابن ابی طالب نے مطابق تنزیل قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ مطابق تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ جس آرڈر میں قلب رسول پر قرآن نازل ہوا تھا اسی آرڈر میں علی ابن ابی طالب نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ یعنی یہ مکی آیتیں ہیں، یہ مدنی آیتیں ہیں، یہ مکی سورے ہیں، یہ مدنی سورے ہیں، یہ ناسخ آیتیں ہیں، یہ منسوخ آیتیں ہیں، یہ حالت امن کی ہیں، یہ حالت جنگ کی ہیں۔ جس آرڈر میں قلب رسول پر نازل ہوا تھا قرآن، اس آرڈر میں علی ابن ابی طالب نے جمع کیا۔ اور میں دعوے کے ساتھ میں آج روز شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام P5 ورلڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کسی کے دروازے پر نہیں گئے، علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا نہیں کہ علی کسی صحابی کے دروازے پر کوئی آیت لینے گئے ہوں یا کوئی سورہ مانگنے گئے ہوں۔ علی نے گھر کا دروازہ کھولا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کا علم قلب علی میں محفوظ تھا۔ ادھر جو رسول پر نازل ہو رہا تھا اور رسول کے سینے سے علی کے سینے پر یہ علم ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور علی ابن ابی طالب نے جب قرآن پاک کو مطابق تنزیل جمع کر لیا تو علی نے دوش پر ادا ڈالی، سر بامامہ رکھا، گھر کے دروازے کو کھولا، اور علی دربار خلافت میں آتے ہیں۔ اور دربار خلافت میں آنے کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ وقت سے، حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ میں قرآن کو لے کے آیا ہوں، اس قرآن کو لو اور امت مسلمہ میں رائج کرو۔ کیونکہ دربار میں جب علی پہنچے ہیں تو ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ آج دربار خلافت میں علی کیسے آ گئے۔ علی نے ردا سے
कुरान पाक को निकाला और निकालने के बाद कहा कि ये रसूल पर इसी आर्डर में नाजिल हुआ था कुरान, इसको लो। आवाज़ आई, या अली, हमें तुम्हारा जमा किया हुआ कुरान नहीं चाहिए है। अली इब्न अबी तालिब ने कोई बहस नहीं की, अली ने उनसे कुछ नहीं कहा, न कोई कमेंट किया। अली इब्न अबी तालिब ने उस कुरान पाक को लिया जो अली ने जमा किया था और अली ने अपने रिदा में लपेटा, और लपेटने के बाद अली ने कहा कि तुम इस कुरान को उस वक्त तक के नहीं देखोगे जब तक कि मेरे 12वें का ज़हूर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अभी 12वां भी पर्दे में है और अली का जमा किया हुआ कुरान भी पर्दे में है। और अजीज़ान मोहतरम, ये जो आज इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं और अल्लाह की किताब एक है, ये एहसान है अली इब्न अबी तालिब का कि अली ने अपने दौर इख्तिदार में अपने जमा किए हुए कुरान को राइज नहीं किया। आज अली इब्न अबी तालिब दरबार खिलाफत में खड़े हुए कह रहे हैं कि इस कुरान को लो और उम्मत मुस्लिमा में राइज करो, मगर कल चौथी मंजिल के ऊपर अली इब्न अबी तालिब उसी दरबार खिलाफत में बैठे हुए हैं। अली चाहते तो अपना जमा किया हुआ कुरान उम्मत मुस्लिमा में राइज कर देते, मगर अली जानते थे अगर मैं अपना जमा किया हुआ कुरान राइज कर दूंगा, जैसे 73 फ़िरक़े हैं वैसे 73 किताबें हो जाएंगी। ये तो किताब बटने न दी, अली इब्न अबी तालिब का एहसान है कुरान के ऊपर। अज़ीज़ान मोहतरम, अली एक इल्मी दुनिया आबाद कर रहे हैं और अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जो कहते हैं कि मुझसे पूछो, जो दिल चाहे मुझसे सवाल करो। यह है बाब मदीनतुल इल्म कि अली जब आसमान को देखते हैं तो कहते हैं सलूनी अंतरोकिस समा, मुझसे आसमानों के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। लोग अली की बात को हंसी में उड़ाने लगे कि ये वो अली हैं जो आसमानों की बातें कर रहे हैं, ये वो अली हैं जो आसमानों की बातें कर रहे हैं कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। जो ज़मीन के बारे में ठीक से न जानते हों, अली कह रहे हैं कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। कहीं आसमानों पर भी रास्ते होंगे। लोग मजाक करने लगे, लोग एक दूसरे से कहने लगे कि कहीं आसमानों के ऊपर भी रास्ते हो सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली के दुनिया से जाने के 1400 बरस के बाद जब ज़माने ने यह पता लगाया 1350 बरस के बाद कि आसमानों के ऊपर भी रास्ते हैं, तो मौरिख कहता है कि अभी हमने सारे रास्तों को तलाश नहीं किया है। तहकीक करने वाला कहता है कि अभी हमने सारे रास्तों को तलाश नहीं किया है। और उसके बाद कहते हैं कि कैसे बदनसीब थे उस दौर के लोग जिसके बीच में अली का जैसा रहबर आके गुजर जाता है और कोई फैज़ ना हासिल कर पाते हैं। ये हैं अली इब्न अबी तालिब। आए भी तो रास्ता पूछने नहीं आए, बल्कि ये कहने लगे कि या अली ये बताओ कि हमारे सर पर बाल कितने हैं, या अली ये बताओ कि हमारे सर पर बाल कितने हैं। उस वक्त जितने भी बाल हों, मगर जहालत ने इतनी चपतें लगाई हैं कि आज इल्म का एक भी बाल सर पर बाकी नहीं है, क्योंकि बाब मदीनतुल इल्म को छोड़ दिया, बाब मदीनतुल इल्म से मुंह फेर लिया, लिहाजा शहर इल्म तक भी दाखिल ना हुए, बाब मदीनतुल इल्म से भी कुछ ना सीखा। और अली के इल्म का इम्तिहान लेने के वास्ते कुछ लोग जमा होते हैं, कहते हैं अली कह रहे हैं कि आसमानों के रास्ते पूछो, तो चलो चल के अली से चादर के नीचे की बात पूछी जाए। एक जवान को तैयार किया जाता है कि तुम्हें मुर्दे की शबीह बनना पड़ेगा, और उसकी माँ से कहा कि तुम रोती पीटती बिलकती हुई अली के पास चलो, हम चल के अली से नमाज जनाजा पढ़वाएं। अली जब नमाज पढ़ा देंगे तो हम कहेंगे कि अली वही हैं जो कल आसमानों की बातें कर रहे थे, आज चादर के नीचे की जानते नहीं। माँ रोती हुई बिलकती हुई आगे बढ़ी और आती है और आके कहती है कि या अली मेरे बेटे की नमाज पढ़ा दो। अली इब्न अबी तालिब ने देखा, आने वालों को देखा, माँ को देखा, उसके बहते हुए आंसुओं को देखा, कहा कि क्या पढ़ा दूँ? कहा हाँ या अली पढ़ा दो। फिर अली ने कहा क्या पढ़ा दूँ? कहा हाँ या अली पढ़ा दो। फिर अली ने तीसरी दफ़ा पूछा पढ़ा दूँ? कहा हाँ या अली पढ़ा दो। अली इब्न अबी तालिब ने अपना हाथ उठाया, जानू पर मारा, आसमान को देखा, कहा ये हुई 3 गवाहियाँ। और उसके बाद अली इब्न अबी तालिब कहते हैं सब खड़े हो जाओ, मैं इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे ही अली ने मुर्दा कहा, जिंदा मुर्दा हो गया, जिंदा मुर्दा हो गया।
और अली ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ा के अली इब्न अबी तालिब उधर जा रहे हैं। वो लोग जो बहका के लाए थे वो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के कह रहे हैं कि यही वो अली हैं जो कह रहे थे कि आसमानों के रास्ते पूछो, चादर के नीचे की जानते नहीं, आसमानों के दावे करते हैं। तो एक मरतबा अली इब्न अबी तालिब घूमे और घूम के अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि ज़रा चादर हटा के तो देखो, चादर हटा के तो देखो। माँ को नाज था अपने लाल की जवानी पर। उसने आवाज़ दी, मेरा लाल उठो। वहाँ लाल हो तो उठें, लाल को मौत नीला करके जा चुकी है। माँ ने आवाज़ दी, मेरा लाल उठो, लाल उठे नहीं। माँ जल्दी से आगे बढ़ी, चादर हटाई, बेटे का शाना हिलाया, बेटा नहीं उठा। कस के पुकारा, बेटे को झिझोड़ा, बेटा नहीं उठा। कहा मेरे लाल उठो। इधर वो लोग हैं जो बहका के लाए हैं, उन्होंने देखा कि बेटा तो मर चुका है। उधर अली जा रहे हैं, बीच में जवान का लाशा है, माँ खड़ी हुई है। इधर वो लोग हैं जो बहका के लाए थे, वो अली हैं। ये जवान का मैयत पड़ी है, मगर वो उधर नहीं गई जो बहका के लाए थे, उधर दौड़ी जिधर अली थे। जानती है कि मौत उधर है तो हयात भी उधर है, अगर मौत उधर है तो जिंदगी भी उधर है। अली की तरफ दौड़ी और जाके कदमों पर सर रख देती है और कहती है कि या अली मेरे जवान को वापस कर दो। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे सुनने वाले सुने, क्योंकि आज का बड़ा अजीम दिन गुजर गया। आज का बड़ा अजीम दिन गुजर गया। 21वीं रमज़ान, आज 21वीं रमज़ान की रात है और मैं करबला ताल कटोरा की होने वाली बाद मगरिब की मजलिस को P5 वर्ल्ड के हवाले से खिताब कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि वो कहती है कि या अली मेरे जवान को वापस कर दो। अली ने कहा कि मैंने तुझसे पूछ के नमाज पढ़ाई है, जब तूने कहा तब मैंने तेरे जवान की नमाज पढ़ाई है। कहा नहीं या अली मेरे जवान को वापस कर दो, मुझे तो या अली फुला फुला लोग बहका के लेके आए थे, या अली मेरे जवान को वापस कर दो। अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि अच्छा चलो। और आने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने उस संदूक को देखा जिसमें उसके जवान की मैयत थी। अल्लाह अकबर। रुक के मेरे सुनने वाले एक जुमला सुने कि अली के हाथ यदुल्लाह, अली का चेहरा वजुल्लाह, अली की आंखें ऐनुल्लाह, अली की ज़बान लिसानुल्लाह। तो आलम यह है कि उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजुल्लाह। तो मगर कहीं हमें ये नहीं मिलता कि अली के पैरों को अल्लाह ने कहा हो कि ये हमारे पैर हैं। अली के पैरों को तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये हमारे पैर हैं, मगर अली इब्न अबी तालिब ने जब मुर्दे को ठोकर मारी और जिंदा किया तो ये नहीं कहा कि कुम बे इज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, बल्कि अली इब्न अबी तालिब ठोकर मारते हैं और कहते हैं कुम बे इज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से, उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा उठता है अली इब्न अबी तालिब फौरन सजदे में चले जाते हैं ताकि कोई अली को खुदा न कहे। और अली इस ज़माने को बताना चाहते हैं कि देखो पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का इख्तियार देखना। पहले वसी का इख्तियार देखो, बाद में नबी और खुदा का इख्तियार को देखना। ये अली हैं कि मुर्दे को ठोकर मारते हैं। तुम आए थे अली की एक फजीलत को घटाने के वास्ते। ज़माने ने, अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब की 4 फजीलतें और निखार के सामने रख दी कि ये वो है कि जो नियत से जिंदा को मुर्दा करता है, ठोकर से मुर्दे को जिंदा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की रात बड़ी क़यामत की रात है। हम उन्हीं अली को याद कर रहे हैं जो यतीमों का सहारा, जो बेवाओं का आसरा, जो बेसहारों का सहारा। अली रात को गरीबों के दरवाज़े पर ऐसे जाते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन आया और किस तरीके से दे गया। आज ज़माना परेशान है, लॉकडाउन का थर्ड फेस है। औरतें बुरखे पहने हुए सड़क पर ऊपर इधर से उधर राशन के लिए, खाने के लिए घूम रही हैं।
मगर जिधर जाती हैं नाकामी हाथ आती है। इसलिए कि बांटने वाले हाथ मासूम नहीं हैं, बांटने वाले हाथ मासूम नहीं हैं। जो लोग बांट रहे हैं वो अपनों को देख के बांट रहे हैं, इसीलिए गरीब भूखा मर रहा है। अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि जिन्होंने मिंबर पर आके कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में एक ऐसे शख्स को लेके आओ जिसके पेट में रोटी ना हो, जो अली की हुकूमत में तो रहता हो मगर उसके पेट में रोटी ना हो, तन पर लिबास ना हो, सर पर छत ना हो। ज़माना अली के सामने लाखों का लश्कर तो ले आया मगर एक भूखा ना ला सका, एक भूखा ना ला सका कि या अली ये भूखा है, या अली हम इसको लेके आए। कल आपने कहा था यतीम बच्चों को देखते हैं तो बैठ जाते हैं। यहूदी के बाग की दिन भर की मजदूरी का जो पैसा मिला है, उसका जो शहद खरीदा है, वो अली उन बच्चों को चटाते हैं, पिलाते हैं जो जिस उम्र का बच्चा है, और सर पर हाथ फेरते हैं। जब दिन भर की मजदूरी का सारा पैसा अली इब्न अबी तालिब ने उन यतीम बच्चों को खर्च कर दिया और सारा शहद उन बच्चों को चटा दिया और खिला दिया, अली गिरिया कर रहे हैं। किसी ने अली की खामोशी को तोड़ा, अली ने सर उठाया, आंखों से आंसू जारी हैं, रीश मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी है। कहा या अली ये क्या आलम है? कहा कि देखो कभी अपने बच्चों को उस वक्त प्यार न करना जब कोई यतीम बच्चा तुम्हारे सामने हो, उसके दिल में एहसास यतीमी ताज़ा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अली इस तरीक़े से यतीमों का ख्याल रखते थे। यतीमों का वारिस आज दुनिया से चला गया, बेसहारों का सहारा आज दुनिया से चला गया। आज हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, हैदर मौला या अली मौला, हैदर मौला या अली मौला। और एक आवाज़ कानों से टकराती है कि अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना कि यह पहली जुदाई है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के अली इब्न अबी तालिब एक एक से वसीयतें करते हैं, इमाम हसन से वसीयतें करते हैं, एक एक बच्चे के लिए वसीयतें करते हैं। इधर एक बीवी के रोने की आवाज़ अली के कानों से टकराती है। कहा ये कौन बीवी है जो गिरिया कर रही है? किसी ने कहा कि मौला ये उम्मुल बनीन रो रही हैं, ये मादर अबुल फज़ल अब्बास गिरिया कर रही हैं। कहा उम्मुल बनीन को बुलाओ। उम्मुल बनीन आई। कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे वाली मैं सुबह से देख रही हूँ आपने सबको इमाम हसन के हवाले किया, मेरे बच्चे से कोई ख़ता हो गई थी। कहा नहीं उम्मुल बनीन, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। बुलाओ मेरे अब्बास को, बुलाओ मेरे हुसैन को बुलाओ। अब्बास को बुलाया, हुसैन को बुलाया। कहा अब्बास आओ बैठो। अब्बास बैठे। कहा हुसैन मेरे पास बैठो। हुसैन बैठे। अब्बास का हाथ लिया, अपने जानू पर रखा, उसके ऊपर हुसैन का हाथ रखा, फिर उसके ऊपर अली ने अपना कांपता हुआ हाथ दोनों हाथों पर रख के कस के दबाया। कहा अब्बास हुसैन से ख़बरदार रहना, हुसैन अब्बास से ख़बरदार रहना, अब्बास हुसैन का ख्याल रखना, हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद अली ने कहा कि सब मेरे हुजरे से दूर चले जाएं, ज़ैनब को बुलाया जाए। ज़ैनब को बुलाया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक बातें होती रही, बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बाप बेटी से कुछ कहती रही, बेटी बाप से कुछ कहती रही, बाप बेटी से कुछ कहता रहा। मगर बाद शहादत अली न इमाम हसन ने पूछा कि बाबा बहन बाबा ने 21वीं की रात को क्या कहा था, न इमाम हुसैन ने पूछा कि बहन ज़ैनब बाबा ने क्या कहा था। यह राज वक़्त राज ही रहता, यह राज उस दिन खुला। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के जब दरबार में दाखिल हो रहे थे तो खाक पर बैठ गईं, तो मैंने बाजू पकड़ा कि फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है,
कुर्सी नशीनों का मजमा है, मेरे लाल क्यों कर चलूँ। फिर ज़ैनब ने कहा अच्छा मेरे लाल इतनी मोहलत दो। 21वीं रमज़ान की रात को मेरे बाबा अली ने कहा था ज़ैनब दरबार में जब तू जाएगी तो तेरा बाबा भी साथ जाएगा, इतनी मोहलत दो कि एक दफ़ा मैं बाबा अली को पुकार लूँ। ये कह के ज़ैनब ने नजफ़ का रुख किया। बाबा अली, ज़ैनब सर खुले हुए बाजार में गुजरी, दरबार में जा रही है। अल्लाह अल्लाह। इसके बाद अली इब्ने अबी तालिब ने आंखें बंद कर ली। यहाँ तक के 21वीं रमज़ान की सुबह आने वाली है। अली के बेटे अली को घेरे बैठे हैं, अली की बेटियां अली को घेरे बैठी हैं। यहाँ तक के 21वीं का सवेरा होने लगा जो आज गुजरा है। अली इब्ने अबी तालिब के सर को शहजादी उम्मे कुलसूम अपने जानू पर लिए बैठी हैं, आवाज दे रही हैं। अली बोलते नहीं, अली आंखें खोलते नहीं। अल्लाह अल्लाह। मगर माँ और बेटी में एक यकसानियत है कि फातिमा रसूलुल्लाह के सर को अपने जानू पर लिए बैठी थी और आवाज दे रही थी बाबा बाबा बाबा। रसूलुल्लाह आँख नहीं खोलते थे। फातिमा की आँख का आंसू रसूलुल्लाह के रुखसार मुबारक पर टपका। जब रुखसार मुबारक पर गिरा तो रसूलुल्लाह ने आंखें खोली, फातिमा के चेहरे को देखा, देखने के बाद आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। फिर रसूलुल्लाह ने आंखें नहीं खोली। अल्लाह अल्लाह, बड़ी यकसानियत है। उम्मे कुलसूम की आंख का आंसू टपका, अली के रुखसार मुबारक पर पड़ा। अली इब्ने अबी तालिब ने आंखें खोली और खोल के भरे घर को देखा और देखने के बाद कहा कि हमने तुम सबको अल्लाह के हवाले किया। अंगुश्त शहादत से सबको देखा, सबकी तरफ इशारा किया, कहा हमने तुम सबको अल्लाह के हवाले किया। ये कहते कहते अली इब्ने अबी तालिब ने आंखें बंद कर ली। फिर अली ने आंखें नहीं खोली। हसन ने आवाज दी बाबा, हुसैन ने आवाज दी बाबा। अली दुनिया से जा चुके थे। वालिया 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 की सदाएं बुलंद थी। कूफे में अली के घर से वालिया की सदा बुलंद थी। जब कूफे वालों को मालूम हुआ अली ना रहे तो अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से अली अली की सदा बुलंद थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसी घर में गुस्ल दिया। जो लोग कूफे हो आए हैं उन्होंने देखा है, वो जगह मौजूद है मौला अली के घर में जहाँ मौला अली को गुस्ल दिया गया। और सहने खाना में मौला अली की नमाज जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। और जब नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मौला अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ाई। हर एक की नमाज जनाजा 5 तकबीरों से होती है, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मौला अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ाई। और जब 7 तकबीरों से नमाज पढ़ा दी तो अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम घूमे और घूम के कहा कि सुनो, ये शरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा अली को हासिल था। अल्लाह ने मेरे बाबा अली को दिया था कि उनकी नमाज जनाजा 7 तकबीरों से पढ़ी जाए। अब आज के बाद सुबह क़यामत तक किसी की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से नहीं होगी। अली की नमाज जनाजा 7 तकबीरों से हुई। और उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबा को संदूक में लिटाया। संदूक में लिटाने के बाद आलम यह है कि अली इब्ने अबी तालिब की मैयत को लेके चले। कहाँ लेके चले? अल्लाह अल्लाह, आगे आगे मलाइका कांधा दिए थे, ताबूत आगे हवा पर मुअल्लक था, पीछे हसनैन कांधा दिए हुए थे। आज जो जगह नजफ के नाम से जानी जाती है, कल गरी के नाम से वो जगह मशहूर थी। और आलम यह है कि उस जगह के ऊपर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब को ला के दफन किया गया। मासूम की मैयत जब आती है तो उसकी कब्र को फरिश्ते तैयार करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खाक को हटाना शुरू किया, मिट्टी हटाई, पत्थर हटाए, कब्र ताज़ा खुदी थी, उसमें मौला अली की मैयत को उतारा। अल्लाह अल्लाह, फ़ज़ाइल के आसमान को
امام حسن علیہ السلام زمین کے حوالے کر کے اب جا رہے ہیں گھر کی طرف، کیونکہ گھر میں زینب بہت بے قرار ہیں، ام کلثوم بہت بے قرار ہیں، ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، امام حسن علیہ السلام رکتے ہیں، اس کی آواز کے اوپر اللہ رے امام حسن علیہ السلام کہ ایک شخص کرا رہا ہے خرابے سے، اور حسن ابن علی جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بھوکا ہے؟ کہاں بھوکا ہوں۔ زخمی ہے؟ کہاں زخمی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا ایک شخص آتا تھا، مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، میرے زخموں پر مرہم رکھتا تھا، میں اس کا نام پوچھتا تھا تو کہتا تھا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسافر ہے جو مسافر کے پاس بیٹھا ہے، ایک پردیسی ہے جو پردیسی کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کے بعد بڑے پیار سے ہم کو کھانا کھلاتا تھا، ہمارے زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ آج 3 روز ہو گئے وہ آیا نہیں ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی، اللہ اللہ۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں، وہ علی ابن ابی طالب تھے، میں ابھی اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا یا علی کی شور بلند کیا، اپنا سر ایک پتھر پر مارا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کے غسل و کفن و دفن کا اہتمام کیا۔ اللہ اللہ میں کہوں گا اے امام حسن، ایک ایسے رونے والے جو زخمی ہے، اس کے جنازے کو دفن کرنے والے ذرا کربلا میں آؤ۔ کربلا میں ایک پردیسی کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے، کوئی اس لاشے کو دفن کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں غسل و کفن تو نہ ہوا، مگر خدا لعنت کرے شمر گھوڑوں کی نال بندی کرنے لگا۔ فضہ کلیجہ تھام کے آئیں، بی بی غضب ہو گیا۔ کہا فضہ کیا ہوا؟ کہا کہ بھیا کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے، کربلا کی زمین ہلی، فاطمہ کے لال کے لاشے کو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین